तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં બહુ સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आप सबका अभिवादन करती हूँ। If you go through the Bible, you will come to know many promises which are given by the Lord Himself. अगर आप बाइबल को देखें तो आप स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अनेक प्रकार की प्रतिज्ञाओं को देखेंगे। If you read 2 Corinthians chapter 1 verse 20, और अगर आप दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय का 20 वचन को पढ़ें, that all such promises are yea and amen in Christ Jesus for His glory. वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Yes, according to that, today we are going to meditate about a promise which we see in Matthew 28:20. हाँ, और इसी के अनुसार से हम आज एक प्रतिज्ञा को देखेंगे जिससे हम मत्ती 28 वचन 20 में पाते हैं। The Lord says, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world." प्रभु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक भी तुम्हारे साथ हूँ। My friends, so many times we are worried. मेरे मित्रों, कई बार हम बड़े चिंतित होते हैं। Oh, I am all alone. ओ मैं तो अकेला हूँ, अकेली Even हूँ। young girls write to us that they don't have enough friends. यहाँ तक कि जवान लड़कियां भी मुझे लिखती हैं कि उनके कोई दोस्त या सहेली नहीं है। Unwanted worries. अनावश्यक चिंताएं करती हैं। Because the Lord says, "I will be with you always." क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। You may be young or old. चाहे आप जवान हो, छोटे हो या बुजुर्ग। See, I am such a old person, देखिए मैं तो ऐसी बुजुर्ग महिला हूँ, but I feel the presence of God all the time in my life. लेकिन अपने जीवन में मैं परमेश्वर की उपस्थिति को सदैव महसूस करती हूँ। Today, the Lord says, "I am going to fill every one of you with my presence." आज प्रभु कहता है तुम में से हर एक को मैं अपनी उपस्थिति से भरूंगा। What more you need in this world? आपको इस संसार में और क्या चाहिए? Cling on to Him उससे आप लिपटे रहें and receive all the blessings from Him. और उससे सारी आशीषों को पाएं। We will meditate more about it in the message. हम इसके बारे में संदेश के दरमियान और मनन करेंगे। And now you hear a beautiful song and enjoy that song. इस समय आप एक खूबसूरत गीत को सुने और उसका आनंद लें। My precious brothers and sisters, today we are going to meditate from Matthew chapter 28 verse 20. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जिस वचन पर मनन करेंगे वो पाया जाता है मत्ती 28 वचन 20 और 21। Says, "Lo, I am with you always, even unto the end of the world." यहाँ वो कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। This is a promise of God. यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। There are so many promises in the word of God. परमेश्वर के वचन में अनेक प्रतिज्ञाएं हैं। When you give time and meditate the word of God, you will come to know all these promises of God. जब आप समय दे करके मनन करेंगे तो परमेश्वर की इन सारी प्रतिज्ञाओं को जानेंगे। In many different ways we read the word of God. हम अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। Some, because they are very tired or not able to spend time with the word of God, they'll just open it. कुछ लोग इसलिए क्योंकि बहुत थके होते हैं या उनके पास समय नहीं है, बस उसे वो खोलते हैं And pick up some word
और किसी भी एक वचन को निकाल लेते हैं and they will say it is from the Lord. और कहेंगे ये प्रभु की ओर से है। No, it's not the way to read the word of God. लेकिन यह परमेश्वर के वचन को पढ़ने का तरीका नहीं है। Psalm chapter 1 verse 2 says, भजन संहिता 1 वचन 2 कहता है, we have to read it and meditate the word of God. हमें उसे न केवल पढ़ना है परंतु उस पर मनन करना है। Then you can find out the precious promises like jewels. तब आप जो है माणिकों की तरह अद्भुत और अनमोल प्रतिज्ञाओं को अपने लिए पा सकेंगे। Hebrews 10:23 says, इब्रानी 10 वचन 23 जो है कहता है, God who promised is faithful. परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। God has only promised all the promises. केवल परमेश्वर है जिसने हर एक प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। He is speaking to you when you read the word of God. और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं वो आपसे बात करता है। And if you read 2 Corinthians chapter 1 verse 20, अगर आप पहला कुरिन्थी 2 अध्याय वचन 20 को पढ़ें, all God's promises are yea and amen in Jesus Christ. तो वहाँ परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। So all the promises of God is for you. तो परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा आपके लिए हैं। And it will be fulfilled by the Lord if you believe. और अगर आप विश्वास करें तो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में पूरी होंगी। So this morning we have taken this verse, this promise, God with us always. इसलिए हमने आज की सुबह के लिए इस प्रतिज्ञा को लिया है, परमेश्वर हमारे साथ है। Just believe that God will be with us always from this morning time. और आप विश्वास करें आज सुबह से वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। Now we are going to see अब हम how देखेंगे we can have the Lord always with us. कि हम कैसे प्रभु को हमेशा अपने पास पा सकते हैं। There was a man called Lo. एक मनुष्य था जिसका नाम था लो। It is Lo Lo. उसका नाम है एलो लो। His name was Lo. उसका नाम था लो। One day he went into a library to read some books. एक दिन वो एक वाचनालय में कुछ किताबों को पढ़ने के लिए गया। Even though he was a Christian, he never touched Bible. जो भी वो एक मसीही था उसने कभी बाइबल को छुआ नहीं था। That day he found out the Bible and he said, so many people are so speaking about Bible, why not I read at least for today? वहां उसे एक बाइबल मिला। उसने कहा कि बहुत से लोग बाइबल के बारे में बात करते हैं तो क्यों ना आज मैं कम से कम बाइबल पढ़ लूं। And that time he went through this verse. और उस समय उसको यह वचन जो है मिला, Lo, I am with you always. लो देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। Lo, I am with you always. लो देखो मैं हमेशा तुम्हारे If साथ you हूँ। read your name in that place, how you will feel? अगर आपको अपना नाम वहां पर दिखाई दे तो आपको कैसा लगेगा? John, I am with you always. यूहन्ना देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। And at the same time, Hilda, I am with you always. वैसा ही हिल्दा देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ I हूँ। read the word of he was so happy. जब लो ने इस वचन को पढ़ा तो वो बहुत ज्यादा खुश था। My name is here. ओ मेरा नाम यहाँ पर But है। at the same time, he was with me when I saw the bad movies. लेकिन परमेश्वर तो मेरे साथ गंदी पिक्चर देखने के समय भी था। Whatever wrong thing I did, he was there. जब मैंने गलत काम किए तब भी वो वहां था। He was looking at me all the time. और वो हमेशा मुझ पर नजर रखी था। And he was frightened in his heart. और लो अपने हृदय में बहुत डर गया। Felt that he is a sinner. उसे लगा कि वो एक पापी है। Sinner before the Lord. परमेश्वर के सामने वो एक पापी And है। he said, Lord, help me to come out of all my sins. और उसने कहा प्रभु जी मेरी सहायता करे मैं हर एक अपने पापों से Be निकलूं। with me all the time from this moment onwards. और इस घड़ी से हमेशा मेरे साथ रहें। Just a small prayer in the place where he found the Bible. और उस स्थान पर जहां से बाइबल मिली उसने एक छोटी प्रार्थना की, From today, you should be with me always. आज से आप हमेशा मेरे साथ बने We रहें। can also ask him like that. हम भी उससे ऐसे ही कह सकते हैं, Lord, night and day, I want you to be with me always. प्रभु जी मैं चाहता हूं कि रात और दिन आप हमेशा मेरे साथ रहें। During troublesome days, I want you to be with me all the time. मैं चाहता हूं कि कठिनाइयों के दिन में आप हमेशा मेरे The साथ Lord रहें। says, और प्रभु कहता है ask and it shall be given. मांगो और तुम्हें दिया If you जाएगा। ask that way, you will be given that blessing. अगर आप ऐसे मांगेंगे तो वो आशीष आपको दी जाएगी। In the Bible, we read about a man called Jacob. बाइबल में हम याकूब नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। His grandfather was Abraham. He was very close to the Lord. और उसका जो दादा था उसका नाम था अब्राहम जो परमेश्वर के अति करीब था। Same way, his father Isaac also was very close to the Lord. और वैसे ही उसका पिता जिसका नाम इसहाक था वो भी प्रभु के बहुत करीब था। But this Jacob and his brother Esau, they were away from the Lord. लेकिन ये जो याकूब और उसका भाई ईसाव थे दोनों परमेश्वर से बहुत दूर थे। And the Lord chose Jacob
और परमेश्वर ने याकूब को चुन लिया। He wanted to speak to him. वो चाहता था उससे बातचीत करे। And once these two brothers were fighting with each other. एक बार ये दोनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे, Esau was very unhappy with his brother Jacob. क्योंकि ईसाऊ अपने भाई याकूब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। He wanted to kill him. वो उसे मारना चाहता था। You know the story. आप कहानी जानते हैं। So the mother was very much worried. इसलिए माँ बहुत ज्यादा चिंतित थी, Because of this mother only all these things have happened. क्योंकि माँ के कारण से ये सारी बातें हुई थी। She never taught her children to be of peace or to be together or good things in their lives. माँ होने के बावजूद उसने कभी भी दोनों भाइयों को नहीं सिखाया था कि जीवन में प्रेम के साथ रहें। So these two children were creating problem. तो ये जो दोनों लड़के थे वो समस्या खड़ी कर रहे थे। Yes, you people have to be very careful with your children. इसलिए आपको अपने बच्चों के साथ बहुत ही सावधान रहना है, Whatever you do, they will follow your ways only. क्योंकि आप जो भी करेंगे आपके ही तरीके पर वो चलेंगे। And the parents said, why not you, Jacob, go to your uncle's house? तो माता पिता ने कहा, याकूब क्यों ना तुम अपने मामा के घर चले जाओ। On the way in the wilderness, he was going to sleep. और रास्ते में जंगल में वो सोने वाला था। There was no pillow, nothing, no comfort. उसके पास कोई भी बिस्तर नहीं था, कोई तकिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। And he took a stone and started sleeping. तो उसने तकिए के लिए एक पत्थर लिया और सोने लगा। Hallelujah. हालेलुया। What a good God we have. हमारे पास कितना अच्छा परमेश्वर Even है। though we forget him, जो भी हम उसे भूल जाते he हैं, will not forget. वो हमें नहीं भूलता। He always remembers us. वो हमेशा हमें स्मरण करता है। Jacob has forgotten him completely, 100%. जो भी 100% याकूब ने उसे भुला दिया था, But God the Almighty was with him. लेकिन सर्वसामर्थी परमेश्वर उसके साथ था। I should draw this boy towards me. ओ इस लड़के को मुझे अपनी ओर खींच लेना है, उसने I कहा। should make him know that God Almighty is with him. परमेश्वर ने कहा मुझे दिखाना होगा कि सर्वसामर्थी परमेश्वर उसके साथ है। Jacob was sleeping nicely. याकूब तो बड़े आराम से सो रहा था। Genesis chapter 28, if you read, अगर आप उत्पत्ति अध्याय 28 को पढ़ें, during that time when he was sleeping nicely, he had a dream. तो जब वो बड़े आराम से सो रहा था तो उसने एक स्वप्न देखा There, the dream, the Lord appeared before him और उसके सामने स्वप्न परमेश्वर जो प्रकट and हुए he talked to him. और उससे बातचीत की। Yes, my precious brothers and sisters. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, Isaiah 45 verses 5 and 4 says, यशायाह 45 वचन 4 और 5 कहता है, I heard it though you do not know me. जो भी तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तेरी रक्षा की है। I called you by your name. मैंने तुझे तेरा नाम लेकर पुकारा है। Isaiah 45, 5 and 4. यशायाह 45 5 और 4 वचन। How much you are close to Jesus? आप यीशु से कितने ज्यादा करीब हैं? Are you very close to him? क्या आप यीशु से अति करीब हैं? If you are not walking a closer life with the Lord, he is telling the same thing to you this morning. अगर आप परमेश्वर के साथ करीबी का चाल नहीं चल रहे हैं तो आज आपको वो कह रहा है, I am calling you by your name. मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकार रहा हूँ। Every one of you must know this. और हर एक को यह बात जाननी है। The Lord wants me to come closer to him. प्रभु चाहता है कि मैं उसके करीब चला आऊं। He is calling me by my name. वह मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What a good God we have. कितना भला परमेश्वर है हमारा। The Lord spoke to Jacob. परमेश्वर ने याकूब से बातचीत की। Oh, 2 Corinthians 4:6 says like this. और दूसरा कुरिन्थी 4:6 जो है ऐसा कहता है, Hallelujah. You are in darkness. तुम तो अंधकार में हो। Psalm 143:3 says, भजन 143 वचन 3 कहता है, the enemy Satan made me dwell in darkness. शैतान ने मुझे तो अंधकार में रखा हुआ था। Same thing we read in 2 Corinthians 4:4 also. और इसी बात को हम दूसरा कुरिन्थी 4:4 में पढ़ते हैं। The God of this world has blinded the minds of men. इस संसार के हाकिम ने लोगों के मनों को अंधकार कर You दिया may है। be coming to the church every Sunday, चाहे आप हर एक रविवार को अपनी कलीसिया क्यों ना आते हो, but have you seen the Lord in your life? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर को देखा है? Are you living a close walk with the Lord? क्या आप प्रभु के साथ सानिध्य में चल रहे हैं? If not, अगर नहीं, He is speaking to you, my brother, my sister. वो आपसे बात कर रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। He wants to bring you closer to Him. वो चाहता है वो आपको अपने करीब ले आए। That's a sweet experience. यह तो बड़ा अच्छा अनुभव है।
You may be far away from the Lord. आप चाहे प्रभु से दूर क्यों ना हो, You may say you are a Christian, या ये कहें कि मैं तो एक मसीही हूँ, not having Christ in you. लेकिन आपके अंदर में ख्रिस्ट अगर नहीं है, But God says, तो परमेश्वर कहता है I want to live with you. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। 2 Corinthians 4:6 says, दूसरा कुरिन्थी 4:6 कहता है, the Lord who commanded the light to shine out of darkness जिस परमेश्वर ने अंधकार में ज्योति को चमकने की आज्ञा दी, had shined in our heart वही हमारे हृदयों को में भी to चमका give light, कि हमें प्रकाश दे, to give light कि हमें प्रकाश to the दे। glory of God in the face of Jesus Christ. यीशु ख्रिस्त के चेहरे के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हमें दे। You will start to shine. आप चमकने लगेंगे। When Jesus comes and stays in your heart, जब यीशु आकर के आपके हृदय में रहता है, your face will start shining. आपका चेहरा चमकने लगेगा। Not only your face will shine, न केवल आपका चेहरा चमकेगा, but also your heart will start shining. पर आपका हृदय भी चमकने The लगेगा। people who see you, जो लोग आपको देखेंगे, they will say something special in this sister, वो कहेंगे इस बहन में कुछ तो विशेष है, something special in this brother. इस भाई में कुछ तो बहुत अलग है। If you follow the Lord as a family, परिवार के रूप में जब आप प्रभु के साथ चले, people will say this is a godly home. लोग कहेंगे ये तो एक धर्मी परिवार है, They love the Lord. ये प्रभु से प्रेम करते हैं। That kind of life was given to Jacob. और ऐसा ही जीवन जो है याकूब को दिया गया। He was very happy. वो बहुत ही ज्यादा खुश था। Till this time, I never experienced this close walk with the Lord. आज तक प्रभु के साथ इतना करीबी में चलना मैंने अनुभव नहीं And किया if you था। read Genesis 28 verse 17, अगर आप उत्पत्ति 28 वचन 17 पढ़ें, Jacob said, तो याकूब कहता है, this is the house of God. यह तो परमेश्वर का भवन है, This is the gate of heaven. यह तो स्वर्ग का द्वार है। Wherever you are, चाहे आप कहीं क्यों ना when you हो, feel the presence of God Almighty, जब आप सर्वसामर्थ्य परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस that करें, place the Lord comes and wants to meet you. उसी स्थान पर प्रभु आकर के आपसे मिलना चाहता है। What a glorious life it is. और यह जीवन जो है कितना अद्भुत जीवन है। John 17:3 यूहन्ना 17:3 में and 1 Corinthians chapter 1 verse 9, और पहला कुरिन्थी 1 वचन 9 में, we read both the verses. इन दोनों वचनों में हम पढ़ते We हैं, should have close walk with the Lord. हमें प्रभु के साथ सानिध्य में चलना है, Then the Lord will give us everlasting life. तब प्रभु जो है हमें अनंत जीवन देगा। Our loving heavenly Father. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, Oh Father, your love is so great. पिता आपका प्रेम इतना महान है। Remember your children who are going through all kinds of problems and sufferings in their lives. अपने संतानों को स्मरण करें जो अपने जीवन में हर प्रकार की समस्याओं और परेशानियों से गुजर रहे हैं। You are with them always. आप सदैव उनके साथ हैं, That's what you have promised. यही आपकी प्रतिज्ञा है। According to your promise, stay with them all the 24 hours. अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 24 घंटे आप उनके साथ बने रहें, Even at the night time, let them have sound sleep, Master. और रात को भी प्रभु जी वे जो है अच्छी गहरी नींद का आनंद लें स्वामी। Lay the mighty hand upon each and everyone who are looking unto you right now. हर एक जो आपकी ओर निहार रहे हैं उस पर आप अपने सामर्थी हाथ को भी रखें। Whatever problem they go through, Lord, hear their cry and Lord, deliver them from all such problems. जो भी उनकी समस्याएं हैं प्रभु जी आप उनकी पुकार को सुन करके उनकी समस्याओं से आप उन्हें छुटकारा दें। Yes, we know that you are God who hears all the cry of your children. हाँ, हम जानते हैं आप परमेश्वर हैं जो अपने संतानों की पुकार को सुनते हैं। Cover your children under the wings, O Father. हे पिता अपने पंखों तले अपने संतानों को छुपा लें। Protect them on all sides. आप उन्हें चहुं ओर से सुरक्षा प्रदान करें। Let not the evil one, Satan, touch वो शैतान दुष्ट जो है उन्हें छूने भी ना पाए। touch their lives, उनके जीवनों को छू लें, touch their hearts. उनके हृदयों को छू लें। Lord, give them peace. प्रभु जी आप उन्हें शांति दें, Give them peace. उन्हें शांति दें। Lord, you are the God who fulfills all your promises. प्रभु जी आप परमेश्वर हैं जो अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने Hear वाले their हैं। cry. उनकी पुकार को सुने, Whatever need they have, supply every need. उनकी जो भी जरूरत है उन्हें उससे पूरा करें। If they want to go a little forward in the ministry or in the spiritual life, अगर वो अपनी सेवकाई या आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, anoint them together.
आप एक साथ उन्हें अभिषेक दें। Let them feel the presence of God in a mighty way. वे परमेश्वर की उपस्थिति को सामर्थ्य के साथ महसूस करें। Fill them with your 9 gifts of the Holy Spirit and 9 few fruits of the Holy Spirit. उन्हें अपने पवित्र आत्मा के 9 दानों और फलों से आप भर दें। Right now, इसी समय, right now, इसी समय my brothers and sisters, receive it. मेरे भाई और बहनों, आप उसे पालें। Power of God is coming upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ रही है। Through that, the Lord will be with you always. इसके द्वारा प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे। You will be comforted and you will be able to comfort other people who are going through sufferings. आप शांति पाएंगे और परेशानी से गुजरने वाले वो लोगों को आप शांति देने पाएंगे। Thank Him from the bottom of your heart along with me. मेरे साथ अपने हृदय की गहराई से उसका धन्यवाद करें। Shall we all thank Him? आइए हम सब उसका धन्यवाद करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are receiving all the blessings. आप हर एक आशीषों को पा रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। What a good Lord you are. आप कितने भले A परमेश्वर हैं। loving Father. एक प्रेमी पिता A है, caring Father. चिंता करने वाले पिता है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु For जी। all your goodness and mercy. आपके सारी भलाई और करुणा के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, what a blessed person you are. आप कितने आशीषित जन हैं, Because you are having the God who has made this heaven and earth. And He says, I am with you always. क्योंकि आपके साथ ऐसा परमेश्वर है जिसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और वो कहता है कि देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। You might be all alone. हो सकता है आप अकेले हों, He says, I am with you. लेकिन वो कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। I, the Lord God Almighty, is with you. मैं सर्व सामर्थी परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। Believe it. इसे विश्वास करें, Believe it. Just believe it. विश्वास करें And take Him with you all the time. और उसे हमेशा अपने साथ लिए चलें। You can talk to Him and walk with Him. आप उससे बात कर सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। In the Bible days, Enoch and Noah walked with Him and talked to Him. बाइबल के दिनों में हनूक और नूह जो थे उसके साथ बात करते थे, उसके साथ चलते थे। From today, you must have Him as your friend and you can talk to Him and get all the blessings from Him. आज से ही आप उसे अपना मित्र बना सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं और सारी आशीषों को जो आपको चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। Cling on to His promise. उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा नाम मीनाक्षी सूरज भान है। मैं लांटेवाड़ी भोसरी से हूँ। मेरे जो हस्बैंड हैं वो मैंने शादी के बाद थोड़े दिन तो ठीक थे, लाइक 2-3 months ही वॉज ऑल ओके, बट अगेन जो उनकी बैड हैबिट्स है लाइक ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो गए थे फैमिली में और बिल्कुल घर में ध्यान देना नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ नहीं लेना, उससे थोड़ी मैं भी डिस्टर्ब हो गई थी। मगर फिर सब जन का ऐसे बोलना था लाइक एल्डर्स का कि मे बी बेबी होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। तो फिर जब मेरा बेटा हुआ तो उसके बाद कंडीशन एक्चुअली और भी वर्स्ट हो गई और उन्होंने ज़्यादा तंग करना चालू कर दिया। फिर वन फाइन डे फिर मेरा भाई मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, फिर मैं उनके साथ रही 1-1.5 साल। मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि लाइक मुझे ऐसे लगता था कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, अभी मैं सच में कुछ नहीं कर पाऊँगी, अभी मेरे बेटे का आगे क्या होगा। तो एक दिन मैं ऐसे ही ऑफिस में बैठकर मुझे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, बस ऐसे ही बैठी थी तब। तो सडनली मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जो 4 साल से मेरे कांटेक्ट में नहीं है। सडनली उसका फ़ोन आता है तो उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम रोने लग गई। तो उसने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने उसको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसे पता चला, तो उनकी एक फ्रेंड है जो जीसस कॉल्स के यहाँ काम करती है, तो उन्होंने उसे बताया कि आपकी फ्रेंड को आज आपकी बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली मेरे बेटे का प्रॉब्लम ये था कि उसका नोज़ बहुत ब्लीड होता था, तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, उन्होंने वही कहा कि समर की वजह से हो रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली क्यों हो रहा है। तो फिर वो दोनों भी मुझे एक जगह पर मिले, फिर वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। दैट वाज इन अप्रैल 2006। अप्रैल 2006 के बाद उन्होंने मुझे उस दिन सब ठीक से बताया कि आप जीसस कॉल्स विज़िट करो, वो उनका वेबसाइट है वहाँ पे विज़िट करो, वो रीड करो, आपको खुद जो आपके डे टू डे प्रॉब्लम्स है उसके भी आंसर्स उसमें मिल जाएंगे। और सच में मुझे जो प्रॉब्लम होता है मैं जब वो पढ़ती थी तो मुझे अपने आप में वो आंसर मिल जाता है, लाइक जैसे प्रभु मुझसे बोल रहे हैं कि बाबा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन ये है। तो जिस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉन्टैक्ट किया उस दिन भर उसके नाक से खून आ रहा था एक्चुअली।
अभी धीरे धीरे मतलब आज जब 5-6 साल बाद अभी इस टाइम पे उसका एकदम ठीक है। अब मेरा नाम तनिष बान है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे नाक से खून निकलता था, अभी वो प्रॉब्लम बंद हो गई है। उसकी हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ही इज़ ऑल ओके, ही इज़ अ यंग पार्टनर ऑल्सो। मैं अच्छा चेस खेलता हूँ और मैं जीसस कॉल्स का यंग पार्टनर हूँ। मैं हर रोज़ स्कूल जाता हूँ। थैंक यू जीसस। रोज़ बाइबल पढ़ता है और जब भी दिनकरण सर का वो बुक्स भी आते हैं, मंथली मैगजीन्स जो आती है वो भी पढ़ता है वो। सो लाइक ही इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू जीसस क्राइस्ट। एक दिन ऐसे ही सर्व करते करते मैंने वहाँ पे पढ़ा, अगर आप प्रभु का घर बनाते हो तो प्रभु आपका घर भी ज़रूर बनाएंगे। मैंने डोनेशन देना स्टार्ट किया और मैं जस्ट अगस्त में देखने आई थी घर। मैंने 11 अगस्त को ये घर देखा और मैंने 15 अगस्त को ये घर बुक कर दिया। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, जबकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, वो सब प्रभु की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे, पैसे तो थे नहीं, आई डोंट नो, मगर कैसे सब अरेंज हो गया। और सब मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए, मेरे भाई भाभी, मेरे बहन, उनके हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, हम सब ने ऐसे जमा करके फिर मेरा ये घर मैंने ले लिया। मुझे अभी कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं हैं। आई एम हैप्पी, माई सन इज़ हैप्पी, माई पेरेंट्स आर हैप्पी। जिन्होंने मेरे आंसू पहुँचे वो आप सबके भी आंसू ज़रूर पहुँचेंगे। आप प्रभु यीशु के शरण में जाइए और आपके जो प्रॉब्लम्स है सब उनको भूलिए, आपके प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाएंगे।